You feel like you're going to die at any moment. किसी को दूध वाली चाय पसंद है, किसी को अदरक वाली चाय पसंद है, किसी को इलायची वाली चाय पसंद है, किसी को चीनी नहीं पसंद चाय में. जैसे मेरे को अपनी कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं पसंद. There are days that I like sweet coffee, but there are days like life. Have you ever faced anxiety? उस सेट पे I met तन्मय भट्ट and honestly I did not know who तन्मय भट्ट was. उनसे तो कौन है भाई? But how do you cope with that sadness? मतलब ठीक है, माना I am also very happy as a person. I don't believe in staying sad for You are long extremely term. happy. Are you happy? That's the question. मैं अब नहीं यार, खुशी क्या है? रणवीर अलवालिया. What is happiness? तू खुश है लाइफ में? Yeah, it's fine. I have seen brighter days. I've seen better sunshine, but it's fine. What makes you happy, Bajaj? This is something that actually makes me happy. My work, this is something that जो मैंने ना बहुत पहले से प्लान करी थी. जैसे तूने बताया ना, तूने सोचना बंद कर दिया टाइम पे. मैं सिर्फ यही सोच रहा था एक टाइम कि भाई काश ये कभी if I am capable enough to do this at some point of time in my life. Yeah. That was something. Dream. This is something that I want to do it forever. I say. So what about tech? What about lead code? Yes, that is wow. This is a crossover happening. This is nice. I like it. Lead code is for money for sustaining. This is something I know might be permanent, might not be permanent, but Makes sense. this is something that actually gives me happiness. लीड कोड के 200 क्वेश्चन भी मेरे को खुशी देते हैं, ऐसी बात नहीं है. बट वो ही है ना जो ZNMD में उससे पूछती है क्या पेचेक मिलने के बाद तुम्हें खुशी होती है. हाँ. Arjun. Yeah, but no, coming back to the point. Yeah. How do you cope up with sadness? Because for me, the temporary escape has been just work. I've learned to not escape the sadness and sit with it. Isn't it too scary? It's scary as hell. Scary as hell. But I feel like if you sit with your grief, it gets a little less over a span of time. Tell me more. How do you deal with it? मतलब तुम बैठोगे कैसे? कभी I have no other option. I can't escape. If I'm feeling completely broken, there is no way. मेरा किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगेगा. People will me distract yourself और start studying. पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे भाई. तेरे को स्ट्रेस आएगा तो एकदम तेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाए. Yeah. But I cannot stop fixating on the fact that currently I'm sad and I need to be in this state. And maybe there is some hope on the other side of the tunnel that एक दिन आएगा when इतना दुख मुझे feel नहीं होगा. And I don't know how to name that feeling, but I've just learned to sit with it. I'm actually in the process of learning that I'm not very good at coping with life, but I'm learning how to do that because अभी तो कुछ ऐसा दुख आया भी नहीं है लाइफ में. आगे चल अभी तो 20 साल के हैं. 21. मैं तो 20 का भी नहीं हूँ, बट ठीक है. थोड़ी सी बड़ी हो मुझसे. ज़्यादा ज्ञान है मेरा. दीदी. Please. नहीं, but coming back to the point, which is very true. मतलब work, studies ये सारे तो बहुत temporary है. I have yet not figured out how to just be with those emotions or how to just sit with those emotions. It's very hard. It's not easy. It's not easy. You feel like you're going to die at any moment. Not die. It's very suffocating. Yeah. Just to be with yourself at that time. See, I know for a fact कि अगर आप दुखी होते हो तो you will not die from that sadness. But in that moment it feels like it's the end of the world. That इसके आगे अब कुछ नहीं है. There is. I can't believe that I am talking stuff like this because I used to be one of the most positive people. Yeah. But I think back then my coping mechanism was completely changing मेरी personality and I was actually not this jolly बचपन से. I used to be very shant. Actually, I used to speak a lot. Then I was told that I speak a lot, so I became थोड़ा सा silent. फिर when I faced थोड़ा सा ऐसा sadness क्या? I used to get attached to people. People used to go away from my life. I used to feel like I failed.
मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई मेरी लाइफ से क्यों जाएगा। क्यों जाएगा? और अगर कोई जा रहा है तो मैं उसको एंड तक रोकूंगी ना। मैं तो अपने जितना मेरे पावर में है, मैं उतना कर सकती हूँ, फिर सामने वाले का डिसीजन है। लेकिन वो मैं डिसीजन उन पे छोड़ती हूँ। मैं या तो प्लीड करती हूँ या मैं वो करती हूँ कि कन्विंस करती हूँ उनको कि भाई नहीं, जस्ट गिव मी दिस वन लास्ट चांस, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेप्टेंस दैट you are becoming an acquaintance to somebody and then suddenly they're deciding to not be a part of your life anymore. I don't have that acceptance. I don't know when will I ever gather that courage to accept that, muster up that courage. And लोगों ने मेरे को बताया that acceptance is the last stage of, you know, going through grief. But I don't think it happens in a sequential manner. I feel like, or on some days you're just going to accept it, but on the next day you are going to cry till your breaking point. That's yours. Yeah, that's fine. Thank you. Better. मैं नहीं पी सकती है काला काला. Black coffee. काला काला. It's something that it's an acquired taste, I feel. But yes, I really like it. I really drink it. It's Yeah. sweet. क्या इनके पास राशन होगा? Yeah. Any that will be sweet. That will be sweet, I feel. So YouTube. Let's talk about YouTube. You want to talk about YouTube? Why do you? Okay, you told me you do this because it makes you happy. यार I'll tell you. मतलब मेरे को ना इंटरनेट बहुत बाद में मिला था. ठीक है. I got exposure to internet after 10th standard or whatever, which is technically late for our generation. ठीक है. आज 5वीं क्लास के बच्चों के हाथ में फोन होता है आज के टाइम में. Yeah. मेरे भाई के पास है. मैं बोल दूं नहीं खुल रहा तो हो जाएगा. तो eventually सब हो जाएगा. वही तो सीख रहे हैं. हाँ, वही सीखना है. वही जरूरी है. हाँ, तो मेरे को ना इंटरनेट बहुत लेट होता. And all after the dirty stuff on the internet I consumed was this. लगी रहा था तेरी शक्ल से लग रहा था कि okay, continue. So, discovered there were different P's in my life. PUBG, हाँ, and the podcast. ठीक है भाई. Wow. एक सेकंड. Podcast stuck with you. Here, podcast has been something that has been there for like. जैसे तू बता रही है, people used to say तू बहुत बोलती थी. I am a talker. I don't like to text people. मैं वॉइस नोट भेज दूंगा. मेरे से टेक्स्ट कॉल कर देते हैं भाई. हाँ, मेरे को टेक्स्ट वाली बीटी कभी समझ नहीं आई. I never understood the concept of texting. तुम इमोशन ही नहीं कन्वे कर रहे. And this was something that I genuinely enjoy. मतलब लोगों को different party and shit में फन आता है. देखो one-on-one बैठ के बात करने में इतना मजा आता है ना. Nothing makes up for it. Makes sense, but at times you want to talk to somebody, they're not in the same logistically they're not in the same area as you. Yeah. What other option do you have? You can't call them. You can call them. You can always call them. Eventually, one day or the other, you'll talk, right? See, but अब वो वाला जमाना तो नहीं है ना नोटबुक वाला कि हम खत भिजवा रहे हैं, उनके पास खत कब पहुंच रहे हैं. It's good to be present in the moment, but I feel like texting is a very good option to convey what you want. I feel it's like मेरे को समझ नहीं आता. I am very bad at. I have never understood मतलब I get it कि तुमने टेक्स्ट डाल के छोड़ दिया सामने वाले को, जब देखना है whenever he is convenient उसने रिप्लाई कर दिया. But I don't know. I don't think I have enough bandwidth to give that. I'm like, just whenever you're free, just give me a call. I just leave a voice note कि भाई जो भी है, let's just sit talk. वही बात खत्म हो जाएगी ना. टेक्स्ट पे तूने 2 घंटे बाद पहले मैसेज भेजा, मैंने 3 घंटे बाद रिप्लाई करा, फिर whenever I'm free. किसी को दिमाग में आया ही नहीं कि क्या बोलना है, जैसे मेरे साथ होता है. What if I want to talk to someone right now? और मैंने टेक्स्ट डाला, उसने मैसेज नहीं देखा, अब उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है ना. हाँ, लेकिन जब उसने टेक्स्ट देखा, तुम्हारी बात हुई, तुमने कोई बात बोली, उसके दिमाग में उस समय रिप्लाई नहीं आया कि वो क्या बोल रहे. तो उस बात की बात बाद में भी हो सकती है. एंड द फैक्ट कैसे हो गया तुम कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो कि चलो टेक्स्ट एग्जिस्ट. हमें क्यों क्या बात कर रहे हैं मतलब बहुत सही बात है वैसे. तुम अगर कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो कि टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हाँ. सिर्फ कॉल के साथ सर्वाइव कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म करो पॉडकास्ट. डिफरेंट पीपल guys we closing the cameras. मैटर खत्म हो गया यहीं पर. नहीं, but people are built different. मतलब मेरे को टेक्सटिंग बहुत ड्राई लगती है. एंड आई एम एक्सेप्टेंस. पीपल आर बिल्ट डिफरेंट, कांट एक्सेप्ट. चिल्स. मैंने अभी तक पिया नहीं है ये. हाँ, इसके पैसे लगे 1 सेकंड. तेरे नहीं लगे. चिल बात.
चीनी क्यों है इसमें? चीनी चाहिए? रुक जा, लेट्स गेट पाऊंगी फिर चीनी के बिना। है मैं चीनी के बिना भाई, नहीं पाऊंगी। शुगर पाउच ले आओ। नो ऑफेंस, बहुत अच्छी है, कड़वी बहुत है। आई लाइक कॉफी कड़वी। वो शुगर पाउच ला। नहीं, मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं नीचे तक चीनी आने का वेट करूं। अच्छा, थैंक हाउ डू आई ऐड इट? प्लीज डू इट फॉर मी। यू। आई विल हेल्प यू आउट। मतलब आई तो हैव अ वेरी लवली रिलेशनशिप विद माय कॉफी। देयर वाज अ टाइम अभी बीच में पिछले हफ्ते कि मैंने 3 दिन अपनी कॉफी नहीं बनाई, एंड आई वाज हैविंग, देखी थी मैंने। I was not at all. I was like, why do I don't have time for myself and my own coffee? I love making my own coffee. It's a process that is very, Therapy. very low. You can make it just the way you like it, and you feel like you have some control over your life. Your life. Oh, हाँ. What an analogy. मतलब making coffee Yeah, अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे लोग चाय बनाते हैं, exactly. किसी को दूध वाली चाय पसंद है, किसी को अदरक वाली चाय पसंद है, किसी को इलायची वाली चाय पसंद है। किसी को चीनी नहीं पसंद चाय में। जैसे मेरे को अपनी कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं पसंद। There are days that I like sweet coffee, but there are days like life. Coffee depends on life. Currently, life has been slightly bitter. That the bitterness of the coffee does not feel bitter anymore. Okay. What's the beef with biotech? What's the beef with biotech? Nothing. Biotech is nothing. Biotech. हाँ, मैं बता रहा हूँ। ब्रांच क्यों बनाई फिर? नहीं, बायोटेक इज नथिंग इन द सेंस, व्हाट आई मीन इज मेरी कोई बीफ नहीं है बायोटेक से। इट्स लाइक इट्स अ ग्रेट ब्रांच फॉर एलिटिस्ट। ठीक है, वी आर करेंटली इन अ कॉलेज इन अ रैंडम स्टेट इन अ रैंडम सिटी, हैविंग पीपल विद हु जिनका नीट नहीं निकला, उन्होंने बायोटेक लिया मेरे द्वारा। Right? And okay, first of all, biotech has insanely cute women. नहीं सर, हमारे कॉलेज में बायोटेक नहीं होता, तो it would have been slightly harder for me to survive. तो मुश्किल से 70 लोग हैं, उसमें आधी लड़कियां हैं, and all of My them. initial friends were from biotech यार। मेरे फर्स्ट ईयर में दोस्त सारे बायोटेक के बने थे, of course, but कोई बीफ नहीं है। It's just मेरे को ना वो लोग बहुत ज्यादा ऐसे उनकी एस्थेटिक करने में बहुत मजा आता है, जिन्हें लगता है कि हम सब हैं। हाँ ठीक है, Actually you're not. तो वो तो उनका हो भी उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। ये बायोटेक वालों का कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? कि why do biotech people struggle so that, मतलब उन्हें हर बार अपनी ब्रांच क्यों जस्टिफाई करनी है? क्योंकि हमारी CSE जितनी प्लेसमेंट होगी नहीं, हमारे पैसों की प्लेसमेंट होगी नहीं। हमें पता है हमें आगे चल के पढ़ना है, तो जब किसी को पता है कि उनकी लगने वाली है वाट, हाँ, तो वो ये इनका कोपिंग मैकेनिज्म है कि भाई हम तो बहुत ही कूल हैं। हाँ, तो तुम बनो ना, बट मेरे सामने नहीं बनोगे, बन ही नहीं पाओगे। तो तूने कट ऑफ किया बायोटेक के लोगों से या बायोटेक के लोगों ने? मैंने कट, यू आर फ्रॉम बायोटेक, हियर हैविंग अ कॉफी, डिड आई कट ऑफ? मैं तो यार बहुत अच्छा मेरा तो दिल बहुत बड़ा है। नहीं, मैं बता दूं, मेरे सामने नहीं बनोगे पहले। ऐसा ना है कि भाई ये तो कितना एरोगेंट या कुछ हो। मेरे को बस, if you think so highly of yourself, which is just similar as me, everybody thinks very highly of themselves, but what I really like is jokes, and biotech is the easiest target. ठीक है, अगर मैं कुछ बोली नहीं हाँ, पीटेंगे। कौन पीटेगा? कोई नहीं पीटेगा। बायोटेक रिप्रेजेंट टाइम ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बायोटेक। उन बेचारों के पास अपने क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम नहीं होते, को बचाने आएंगे। मैं भी फाइल लेके आई थोड़ा सा। यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर टू फ्री स्केड्यूल। It's But, not free, okay? We have 4 labs as well. हमारे We also have 4 labs, but हमारे our, पास, हाँ, तो and it's actually tougher for us because we're not made for coding specifically. तभी Yeah, yeah. biotech में आया। Yeah, yeah. We have to learn coding. We have, then why do something that you're not in for? चल नीट नहीं निकला तो बायोटेक, क्योंकि करिकुलम ऐसा बना के दिया है कॉलेज ने, इसमें कॉलेज पे मत जा भाई प्लीज। हाँ नहीं कॉलेज बहुत अच्छा है हमारा, आज ही रजिस्टर करें। IIT नॉइस,
Apparently पता है जब भी मैंने जितने एपिसोड जब भी मैंने एपिसोड्स डाले और सब ऐसा आता है भाई IIT नोएडा देखा है मैंने. I watch your vlogs very diligently. प्लीज डोंट it's embarrassing. So is it your way कि अच्छा even if nobody is watching, Yeah. years later at least I'll have something to look back कि मेरी जवानी ऐसी गई. मेरा एक मैं अपने बच्चों को दिखा पाऊँ कि तुम खराब पावा कैसे थे. लोग vlog नहीं बनाते. Hey guys, it's your future. तो वो नहीं करता मैं. I am not that. Yeah, मेरे को नहीं बनना सौरभ जोशी. I've never understood Inspiration behind. this. There is not just one. There is a lot, but primarily it's Prakhar ke Pravachan, of course. I have seen him from the start. I had What internet. about Shweta? Oh, Prakhar. समझ नहीं रहे हो. काम करो लौंडे. काम करो. हसल नहीं करोगे आज से 2 साल बाद रोएगा तू. भाई भाई वो मैं 2 मिनट पास आके बोलते 2 मिनट में मेरे को लगता है कि भाई नहीं मुझे भी कमाना है, बहुत करना है. कमाना है मुझे. वो ब्रांच का होने नहीं, but Prakhar Bhaiya has been there. I've spoken to Prakhar Bhaiya. I've sort of spoken to Shwetab Bhaiya also, but I've seen those casts when Namra Kasana is there. Really love him. मैं बहुत consume करता हूँ, ठीक है? And I really love this genre. And I was like, will there be a time that I'll be able to do this? Yeah. And today, if I am able to do this, I don't know if it comes out or not. Greatest. कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऑडियो एफ हो जाए, कोई रिकॉर्डिंग एफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है. You know what happened before and how this happened, right? Yeah. I want to be in a place where I don't have to care about all this. मतलब जो तू पूछी थी ना, तू लीड क्यों कर रहा है, मेरे को लॉजिस्टिकली इतना सॉर्ट होना है कि मेरे को इसके बारे में सोचना ही ना पड़े. मेरे को बस ये सोचना है कि हमने बात कर ली. तो ये तेरा escapism. नहीं, ये मेरा एस्केपिज्म नहीं है. दिस इज व्हाट आई वांट. But when will you process the emotions जिनसे तू भाग रहा है? I don't know. It all narrows down to just sitting with it. Sit with it. It's like there are times when I have just a coffee and a book by myself. I don't mind. Real. I love being by myself. At this point, when you were saying that ki matlab people matter and whatever, it's hard for you to accept that कि कोई कैसे चला गया, whatever happens, right? Yeah. I have come to a point in my life where I don't care anymore. मतलब अर्पित बाला ने बात बोली थी और बहुत सही बात बोली थी कि कोई व्यक्ति आए, I'm saying कि मैं पहले ही डिटैचमेंट का बीमा करा के चलता हूँ कि never expect anything from anyone. That's a very high level of knowledge, thinking and acceptance which comes from a great place of hurt. मेरे साथ में दिक्कत क्या है? क्या? कई बार भी हर्ट हो जाती हूँ ना, सीखती नहीं हूँ. ये डिटैच रहना चाहिए. Detachment मत रखो. Detachment comes when you've spent enough time with yourself. Yeah. I don't know how this might sound, but I was speaking to my mom and she was scared because मैं picture अकेले देखना चाह रहा था. I have seen enormous movies by myself and I know people are scared to watch movies by themselves. मैंने इतने shows अकेले attend करे and I've had the best time I could ever have. I've been happier with people. And you are an extrovert. I'm an ambivert. Don't not like to be categorized. You're an extrovert. You talk to people. I don't understand what I am right now. मतलब Figure it out. Let's figure it out. Let's break down Bisha Chaturvedi on podcast. wow, happy to be here. Seems like therapy. Seems like it is a therapy. I feel one-on-one conversation से बढ़िया कोई therapy नहीं है. हाँ, but I've had so many one-on-one conversations कि अब लोगों के opinion में Opinions बन गया. हाँ, तो मेरा opinion क्या है? मैं अकेली नहीं बैठती हूँ ना. I'm scared to sit alone. Sitting with grief is different. Being alone and staying happy is different. Being alone and being lonely is very different. I feel. Yeah, I can stay alone. Yeah. I can stay alone, but I feel lonely. I don't think I'm capable. I am capable enough to stay alone, but I feel like I Prefer. emotionally just burst. I'll shatter. But maybe that's important. हाँ. But I don't learn. मैं इतनी बार hurt हो चुकी हूँ. Hurt सामने वाले की गलती भी नहीं है. If somebody it's is not- meant to leave your life, Yeah. they will. Yeah. And लोगों ने छोड़ा. I don't blame them. But then
when will I learn कि acceptance is equally important? That why am I asking this to you? Because it's a conversation that we're supposed to have. Yeah. We can talk about something else. We can talk about. No, we'll first stick to that question because that's actually something interesting. And तेरे को पता है ना तेरे को ADHD है जिस हिसाब से तू divert कर रही है from topic to topic. ADHD नहीं है मुझे. नहीं, but Anxiety है. क्या है? Anxiety. Anxiety. Have you ever faced anxiety? I'm not sure what I feel उसका term anxiety होगा, but I think that is. You've been sad enough. I feel कि मैं ऐसे unconscious हो जाऊंगी. मेरे को ऐसा लगने लगता है. Numb. ऐसे emotionally numb. हाँ, नहीं emotionally numb भी नहीं. I feel very heightened level of emotions all at once. So isn't that great that you were able to sit with your emotions even if they are heightened or at peak? Yeah, but then it just never gets better. So like मुझे लगता है कि मतलब मैं इस चीज को go through भी करूँ, मैं अपने साथ अकेले बैठूँ भी और ये सही नहीं हो रहा, कभी कम ही नहीं होता है, दर्द खत्म नहीं होता बे। दर्द खत्म क्यों नहीं होता? और दर्द है किस बात का ये ना I feel दुख का कारण नहीं पता, बस दुख है। हाँ, दुखी चल रहे हैं बट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। God. यार I feel time's the best healer in that sense. मतलब spending enough time by yourself ना fixes a lot of things that probably you need a lot of people, you want a lot of people, but actually you can be by yourself. It's okay. and even the people I have, I'm so grateful for them. Yeah, same. They keep on telling me कि you have what it takes to be alone. Yeah. तू अपने साथ बैठ के तो देख, यू शुड नो व्हाट बिशा चतुर्वेदी है। वो ऐसे बताते जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। क्या बात करिए, you've done a movie, ठीक है? मूवी एक बार करी, किस्मत चमकी मेरी। You've done a movie with Tanmay Bhatt, ठीक है? One of again a comedic aspiration. Wow. He was the producer actually. His first produced movie. Have you met him? Yes. How was it? How was it like working with that AIB Productions and everyone? This movie was. तो चिंटू का बर्थडे करिए ना? Yes. And how was it like doing a movie at that age? I was 13. It was shot in 2017. तभी थी मैं 13 साल की शायद. 8 years back, yeah. Yeah. And it got released in 2020 lockdown because there were a lot of issues with the release. I to this day don't believe कि मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट से कर्म करे थे जो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरी मम्मी को स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्ट था कि ओ शी सो क्यूट, मतलब बचपन से हम इसे मॉडलिंग में डालेंगे, एक्टिंग में डालेंगे। एंड आई वाज वेरी एक्सप्रेसिव, तो शी यूज्ड टू सबमिट मेरे सीवीज वगैरह। एंड उससे पहले भी मैंने थोड़े बहुत गिग्स में काम करा है, मतलब मैंने कुछ तो DD नेशनल टाइप की चीज़ में काम करा था एंड आई गॉट लाइक 4,000 फॉर इट। ओह डैम। मैंने सलमान खुर्शीद हु वाज द एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनका एक जो दामी ब्रेव हार्ट नाम की एक एल्बम थी, उसमें मैंने 4th क्लास में काम किया था इन द म्यूजिक वीडियो as that character. It was a music album, तो उसमें गाना है and I had to act blah blah blah. So that was also a very interesting experience. But ये movie was a game changer. I had not expected कि मुझे कोई movie की opportunity मिलेगी. And then I saw the people that I was working with. Partner तिलोत्तमा शोम, सीमा पावा, भाई मेरे तो भाग्य खुल गए। उसके ऊपर से मुझे पता लगा that I been paid for it. मेरे को क्या है मुझ में? And then like यही तो चाहिए। We need a simple girl who is going to play the sister of a very simple boy of a simple साधारण से बिहारी family जिन्हें एक फर्जी पासपोर्ट के थ्रू बगदाद में पहुंचा दिया गया है। And against all odds, they're just willing to celebrate उस छोटे बच्चे का बर्थडे। So a very beautiful movie by the way. The auditioning story is also very beautiful. How was it? How did you audition for it? So I'll tell you, मम्मा मुझे ऐसे खींच के ले जाती थी कि अरे एक कास्टिंग कॉल और है, ये वाला ऑडिशन दे दो, इसके बाद तुम मत देना। एंड मेरा हो जाता था कि मम्मी कुछ नहीं फायदा है, मैं जाती हूँ पूरे दिन वहाँ बैठना पड़ता है, जब तक नंबर आता है तब तक मैं थक जाती हूँ, पूरे दिन स्कूल के बाद मैं नहीं दे सकती ऑडिशन। वो एक लास्ट पुश मैंने किया था, मम्मा मेरे को लेके गई थी एंड ऑडिशन चल रहा था, मुझे स्क्रिप्ट दी थी एंड आई वाज लाइक इसमें मैं क्या बोलूँ, चिंटू का बर्थडे, चिंटू कौन है, मुझे क्या बोलना है, केक क्यों नहीं बना, क्या है ये। तो मैंने लाइंस याद करके बोल दी थी, बट
उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट मोमेंट. आई वाज गिविंग द ऑडिशन टू द डायरेक्टर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि अगर चिंटू का बर्थडे नहीं बनाना तो मतलब सब खत्म हो जाएगा. एंड ही वेंट अवे, वो रूम से चले गए. इतना बड़ा रिजेक्शन मुझे आज तक लाइफ में नहीं मिला कि मैं किसी के सामने एक्टिंग करते हुए रोई हूँ और वो रूम से ही चले गए. 1 घंटे तक उन लोगों ने हमें बिठाया, फिर वो आए एंड ही वाज लाइक वी फाउंड द पर्सन फॉर आवर मूवी, वी फाउंड आवर लक्ष्मी. दिस इज, इससे अच्छा लक्ष्मी तिवारी कोई प्ले नहीं कर सकता था. And I was like, was it because I cried? That's what I do on a daily basis. It happened naturally, right? It happened naturally. And उसके बाद भी there was a long selection process. There was a whole group of people who were shortlisted to play that role. एंड बहुत एंड तक जाके फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था. एंड उसके बाद वीडियो कॉल्स पे आई यूज टू लर्न अरबिक के 3 डायलॉग थे, मैंने वो कम्प्लीटली मेमोराइज करे थे. एंड जो भोजपुरी जो लहजा होता है, बिहारी एक्सेंट होती है, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनकी एक कज़न है आर्या, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे मुझसे बात करी थी और उन्होंने कहा कि वो लोग है को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब किस चीज़ पे वो जोर डालते हैं बात करते हुए, जिससे कि इट लुक्स नेचुरल. ऐसा नहीं मैं पंजाबी एक्सेंट में नहीं बात कर सकती, पापा जी ठीक कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं बोल सकती ना बिहारी फैमिली में. तो That's very funny. अगर कोई बिहारी एक्सेंट में पंजाबी बोले वैसे. बहुत ही मेरे श्रेया नहीं बनेगा जी. एंड मैं तो बहुत पंजाबी गाने सुनती थी उस टाइम पे, तो मेरा तो, और मेरे आसपास सारे पंजाबी थे. मुझे आधे टाइम लगता था मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ. Wow. कितना ओवर शेयर कर रही हूँ. पोस्ट लैब क्लैरिटी. नहीं बट या कंटिन्यू. तो हाँ, तो एंड इट वाज, मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम आई वुड से वाज द प्रिपरेशन ऑफ दैट मूवी. बिकॉज मैं मुंबई गई हूँ एंड मैं और मेरे पापा वहाँ पे रहे थे. फूड वॉज स्पॉन्सर्ड, गोइंग टू द सेट वॉज स्पॉन्सर्ड. माई फादर वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर दैट 1 month कि यू नो my daughter is doing something so big and I am getting so much, you know, love and recognition for it, and that feeling was so good कि I could make him feel like that. Yeah. तो yeah, and that उस set पे I met तन्मय भट्ट and honestly I did not know who तन्मय भट्ट was. उनसे तो कौन है भाई. मैंने विनय पाठक को दिल्ली वो वाली मूवी में देखा, चलो दिल्ली में देखा था. ठीक है. और वो वाली में देखा था, अपने बना दी जोड़ी. विनय पाठक मुझे पता थे कौन, ऑब्वियसली. तिलोत्तमा को मैंने हिंदी मीडियम में देखा था. और सीमा पापा को मम्मा पापा ने बताया था कि एक शो आता था बहुत पुराना, उसमें एक बहुत रोल प्ले करती थी और कुछ तो मतलब शी इज वेरी फेमस. आई न्यू अबाउट हर. तन्मय कौन है? तन्मय भट्ट कौन है? एंड सो व्हाई इज एवरीबॉडी अराउंड हिम, मतलब ये क्यों हाईलाइट है सेट पे? नवीद सर वाज आल्सो ऑन द सेट. नवीद सर से तो मेरी बहुत बात हुई है. तो नवीद सर, तन्मय सर, उनसे मैं मिली. जब शूटिंग खत्म हो गई और मैं वापस स्कूल आई और सबने मेरे को बोला कि भाई तो शूटिंग के लिए गई थी ना, मतलब बकवास तो नहीं गई थी 1 महीने घर पे बैठ के. मैं कहा नहीं ये सब था, बाकी तन्मय भट्ट से मैं कौन है भाई, मैं नहीं देखी यूट्यूब. तो लोगों ने बताया भाई तन्मय भट्ट तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है. तो मैंने सर्च किया कि AIB क्या है ये, और तब तक बंद थोड़ी हुआ था अभी. नहीं तब तो चल रहा था. एंड यू वर द एंडिंग. या मत बोल भाई. सो मैंने चेक करा एंड आई गॉट टू नो हु तन्मय भट्ट वाज. लाइक 1 सेकंड मैंने, ये तो क्रेजी हो गया. हाँ, ये मैंने क्या कर दिया भाई. मैं तन्मय भट्ट की मूवी में काम करके आई हूँ. तो मेरा ऑब्सेशन और बढ़ा कि भाई ये मूवी कब रिलीज होगी इस मूवी. एंड एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर है देवांशु सर, तन्मय भट्ट एंड देवांशु सर वर ग्रेट फ्रेंड्स कॉलेज टाइम से. मीडिया के स्टूडेंट्स थे वो, तो बॉम्बे में वो लोग साथ में स्ट्रगल करते थे, साथ में दोस्त थे. एंड मैं किसी को भी नहीं जानती थी ऑब्वियसली, की स्ट्रगल को नहीं. 10 साल से स्क्रिप्ट पे काम हुआ है. चिंटू का बर्थडे की स्क्रिप्ट पे 10 साल से काम हुआ है. इट वाज देयर ड्रीम. द डायरेक्टर्स आर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन बिहार, मुंगेर, एंड दे आर फ्रॉम बिहार. तो उन्होंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी थी. उनका भी निकनेम चिंटू वगैरह था, तो वो सोच के. एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट तन्मय भट्ट एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट तन्मय भट्ट. एंड देन फिर मेरे को पता लगा कि अभी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. Then I सबको लगने लगा कि इसने फिल्म करी नहीं है. क्योंकि वो 17 में शूट हुई, 20 में रिलीज. और 8th क्लास के बच्चों से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? सपोर्टिव तो होंगे नहीं. तो 8th क्लास में इन जनरल कोई सपोर्टिव नहीं होता अराउंड. तो 9th में जब मैं आई तब
नहीं 10th में जब मैं आई तब सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 2019 में इसकी पहली स्क्रीनिंग हुई थी एंड वहाँ पे द रिस्पॉन्स वाज क्रेजी. मतलब पीपल स्टार्टेड क्राइंग, पीपल गॉट अप फ्रॉम देयर चेयर्स, देयर वर मीडिया चैनल्स देयर. जागरण फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के फर्स्ट इंटरव्यूज दिए थे. उसके बाद मैं अब ये कर रही हूँ, तो नॉट सो बट हो नहीं पा रहा है मुझसे. बहुत बड़ा गैप आ गया है सीवी में, बहुत बड़ा गैप. सीवी में बहुत वो आ गया ना, गैप ईयर आ गया वैसे. हाँ 5 साल का गैप ईयर आ गया 2020 के बाद. करके लाइफ में सिर्फ डाउनवर्ड स्पाइरल क्यों किया? तो मतलब बेसिकली आई शुड आस्क कि मेरा अच्छा चल रहा है, तेरा बुरा चल रहा है. From Pinto का बोर्डल to Thoughtcast, from तन्मय भट्ट to आदित्य बजाज, ये सीन है भाई. मेरे अकाउंट पे तन्मय भट्ट एडिड थे. मेरा फ्लेक्स ये था कि मेरे मूवी वाले सारे लोग एडिड हैं. हाँ. वो अकाउंट ही डिलीट हो गया. वाओ. और मैंने उसे कितना रिट्रीव करने की कोशिश करी, फिर से एक्सेप्टेंस नहीं है, तो रिट्रीव करने की पूरी कोशिश करी और एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है कि अकाउंट डिलीट कैसे हो गया. फाइनली गिव अप करके नया अकाउंट बनाया था कॉलेज में आके. कोई नहीं, इट्स बीन इनफ पॉपुलर आई फील. या इसके बाद वो हो ही जाना चाहिए. इसके बाद तो मेरी अगली फिल्म आएगी भाई. That's all. But फिर ऐसे लाइक तूने बताया कि आंटी हैज बीन सो सपोर्टिव फ्रॉम द स्टार्ट. अंकल भी बहुत खुश होते हैं. अंकल तूने बताया हर चीज एक एक फ्रॉम द मूवी. हाँ, हर चीज एक एक ऐसे. स्टिल टू दिस डे फाइंड्स आर्टिकल्स वगैरह जहाँ पे मेरा मेंशन है क्या मेरे बारे में. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स लाइक? मतलब सीजन 2 पॉडकास्ट. अच्छा कोई नहीं, मतलब रिलेशनशिप विद पेरेंट्स मतलब कुछ लोगों को कुछ का अच्छा होता है. जैसे मेरा बहुत अच्छा बुरा चलता रहता है सॉर्ट ऑफ. ठीक है, वो हमारी एज में चलता ही है. बट आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स जिनके साथ मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ. इवन इफ आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आई कैन जस्ट गो अप टू देम एंड बी लाइक कि ये तो हो गया है जी. अभी सभी खत्म है, क्या करूं? नहीं, they've been supportive in that sense, but what's your thing? They know me. Yeah. Even if I don't express anything, they know what's going on with me. Yeah. But they're supportive enough to give me that space. Yeah. But अगर उनको ये लगता है कि that I'm going into a downward spiral, which I do very often, so they take me out of it. They remind me who I am. Which is very necessary also. I feel. Yes. Which is actually मतलब वो माँ बाप बनने का फर्ज निभाता है ना. हाँ, तो आई एम मतलब आई एक्सप्रेस मोर टू माई मदर, बट आई फील लाइक माई फादर अंडरस्टैंड्स मी बेटर. ही नेवर सेज इट बट ही नोज हु आई एम. Uncle, if you're watching this, मत देखो पापा, मैं लिंक ही नहीं भेजूँ. नहीं. But yeah, from movie to biotech, ये कैसे हुआ है? That is something that just came to my mind कि भाई ऐसा क्या हो गया यार लाइफ में कि मूवी से बायोटेक पे आना पड़ा. पता है मुझे Was it by choice? coming into biotech? Yeah, मतलब why not go in that? Media or Yeah. some other Yeah, content only. Why not? See, I feel like मेरे साथ ऐसा है कि the more pressure I take on myself, the better I perform. मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँगी तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं वो कर सकती हूँ. एंड अगर तुम मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, देखो तो हमें भी पता है ड्यू में पढ़ाई होती नहीं है. अगर मैं ड्यू में जाती, मैं 3 साल बहुत मजे करती, मेरी बहुत पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती, वो तो यहाँ पे भी हो रही है ना. नहीं हो रही है. ओके, I feel हमारा कॉलेज is slightly more restrictive in that sense. We are too caught up with exams और वो सब. You wearing a uniform. So yeah. Yes, but I feel like if I would have left myself academically, तो वहाँ से अपने आप को पिकअप करना बहुत मुश्किल होता. एक बार तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, फॉर मी, मैं वापस उसे रिज्यूम नहीं कर पाती उस तरीके से. एंड मतलब आई डोंट नो, मैं अभी भी, मेरे को थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है. माई यंगर ब्रदर डज थिएटर. ही इज जस्ट 9 years old and he started doing theater. So I see him, and वहाँ पे इतने लोग आते हैं, they have full fledged jobs, and वो उन जॉब्स के बाद आके दिल्ली में मंडी हाउस में आके, कमानी में आके थिएटर करते हैं. एंड उनको पैसे की पीटी नहीं है, पैसा तो वो कमा रहे हैं. इतनी थकान के बाद अपने आई डोंट थिंक दे फील टायर्ड. मतलब उनके लिए वो एस्केप है. Like for me, this is right. मतलब even जो भी हो, it's like even how bad your day is, if for just 30 minutes or 1 hour you do something that you really love, it just makes everything slightly better, I feel.
Yeah. For You should them- always have time for yourself. Yeah. And I think ever since I've forgotten what I actually loved and I've stopped giving it time. उसके बाद से मेरा ये spiral शुरू हुआ. I've become too dependent on getting solutions from other people rather than finding it from Yes, myself. but there are times that you need advice from people, True. and it's fair, I feel. Yeah, I mean, you can't get yourself out of every trouble. Yeah. That's what human is, a social animal. You need Yeah. to socialize with people. But I think it's about damn time I focus on the fact that I can also take myself out of very grave situations, because eventually it's you alone surviving. Yeah. At the end of the day, it's you by yourself. Yeah, people can advise you, they can hold your hand through it, but if you don't make that push, you're not going to come out of that space. जहाँ पे तू बोल रहा था, Yeah. मजा बहुत खराब जगह है ये. It's like, it's a place I feel everyone should experience it once, ताकि तुम्हें एक बार होता ना स्वाद मिल जाए उस पार्ट ऑफ लाइफ का भी. But just don't be there. मेरा डर ये है कि अगर मुझे सच में बहुत अच्छा लगने लगा ना अकेले रहना, तो फिर मैं वहां से नहीं निकलूंगी बाहर. मैं तो नहीं निकल पा. फिर नहीं. I have made, I feel so much peace by myself. It is really hard for me to adjust now with someone. And it's not just in terms of relationships. It has been a conversation around with parents also. कि भाई हाँ मतलब there is a lot of love, there is a lot of respect in everything, in friendships, relationships, parents, सब कुछ है. But the matter of fact that I've made so much peace that I enjoy by myself, I might not just, after a while just prefer being by myself. कि भाई हाँ हो गया अब सब good, great, but अब मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए आज. Anyways, तो बोलो. Deep. हाँ नहीं बहुत 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 ज्यादा सीरियस नहीं होना यार लाइफ में इतना. Yeah. And Okay. हाँ. after the movie, how did I get into biotech? Yeah. मूवी के बाद मूवी नहीं मिली आज. You love the पैसा honesty. तो कमाना है ना भाई. हाँ. बाटी में तो पैसा नहीं है लेकिन. Let's be Let's be real. Let's be real. मूवी तुमने आज करी, तुम्हारे पास आ गए बहुत सारे पैसे, Yeah. तुमने उन्हें इन्वेस्ट करने की जगह उन्हें उड़ा दिया. कहाँ उड़ाया? हमारी कहीं पैसे कैसे मारती है? कहाँ उड़ाती है पैसे? सबसे ज्यादा पैसे कहाँ जाते हैं? खाने में. क्या पसंद है सबसे ज्यादा? क्या पसंद है सबसे ज्यादा? वेट, आई लव अ लॉट ऑफ थिंग्स. पास्ता, हाँ. कौन सा? व्हाइट सॉस. भाई नाइस. ये एक्सप्रेशन ना जूम करके डालूं. I love pasta. हाँ. I love everything. I love to eat. I'm हाँ. vegetarian, but I love eating in vegetarian. Okay. Yeah. एक पास्ता है. I live for food. Oh my word. तो मुझे पैसे दोगे, मैं सारा खाने में लगा दूंगी. मैं इन्वेस्ट भी नहीं करूंगी, मुझे आता भी नहीं है इन्वेस्ट करना चाहिए. बायोटेक से चाहिए. अरे यार तो पीछे बड़े हाथ धोके. ना धो के हाथ धो के. नहीं बट ठीक है. हाँ, तो बेसिकली बात यह है कि मूवी से घर नहीं चलेगा. हाँ. या पता है लोगों के अंदर बहुत पैशन होता है. Yeah. हम मेरे जो मूवी के डायरेक्टर है सत्यांशु सर, ही वाज डूइंग AFMC से MBBS. ही लेफ्ट हिज MBBS मिडल ऑफ हिज डिग्री. ही गेव मनी टू दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एक बॉन्ड साइन करना होता है. हाँ कि पूरा MBBS में तो पूरी फीस जाती है. हाँ, तो जस्ट टू गेट इनटू दिस सिनेमा बिकॉज ही लव्स इट. Yeah. And I think I have yet to find my calling because I love a lot of things. Yeah, same. मतलब I feel it's fine, but at the end of the day, I feel this is something that gives me peace. And but I am just glad that it is happening. और मैं चाहता हूँ that there comes a day that I get to do this whenever I want. That's amazing. मतलब this is something that Yeah. really makes me feel कि भाई कुछ तो ठीक जा रहा है like. कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ अपने साथ. नहीं अपने लिए अपने साथ का पता नहीं, but it's like something that gives me happy. I don't know what to categorize. I that love feeling. singing. हाँ. But the thing is, So you sang in college also. You sing often. yeah, वो कहाँ से pick up करा? Like acting तो चलो आंटी yeah, got you. got me into it. But सिंगिंग मुझे बचपन से ही पसंद थी. कैसे साउंड कर रही है श्रेया घोषाल. मुझे बचपन से पसंद थी. ठीक है, फिर मेरी मम्मा हैज बीन टू सपोर्टिव, बोथ माय पेरेंट्स. तो शी गॉट मी इनरोल्ड इनटू क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस. क्लासिकल म्यूजिक सीखा, गॉट बेटर एट इट. जबकि मतलब मैं देखो क्या होता है, तुम्हारी आवाज अच्छी है बट अगर तुम्हारी टेक्निक अच्छी नहीं है तो तुम कम्पीट नहीं कर पाओगे लोगों से. और आज के टाइम में तो हर दूसरा बंदा गिटार लेके गाना गाना शुरू कर दो. कॉलेज में दिख जाता है.
तो मैं नहीं कम्पीट कर सकती उन लोगों से भाई, तो मैंने थोड़ा सा गिव अप करना शुरू कर दिया था। और क्लासिकल म्यूजिक में तुम कहते हो कि अगर एक दिन की तुम्हारी रियाज छूट गई है तो यू आर 1 मंथ बिहाइंड, और मैंने पता नहीं कितने टाइम से ये छोड़ा हुआ है। गिव अप क्यों कर देती हूँ मैं, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं अच्छा खासा म्यूजिक सीख रही थी, बीच में पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया तो मुझे लगा मैं म्यूजिक को अब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसमें मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रही हूँ। फालतू की चीज एक ये है कि मुझे रिकग्निशन बहुत पसंद है। वैलिडेशन सबको पसंद है। हाँ, तो वैलिडेशन के पीछे मैं इतना ज्यादा भागती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये चीज अगर अच्छी लग रही है तो क्या घंटा फर्क पड़ता है दूसरे के वैलिडेशन से। इंसान जीता ही सिर्फ सेक्स और वैलिडेशन के लिए। सही बात है। मत करो मत करो बंद करो बंद करो। हाँ, तो माय पॉइंट इज मेरा पॉइंट ये है कि मुझे गाना गाना पसंद था, मैंने गाना गाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे वैलिडेशन नहीं मिला उसमें। बाद में पता लगा कि मेरी म्यूजिक टीचर मेरी आज तक मेरी आवाज की याद करती है, कह रही बहुत अच्छा गाना गाती थी वो। और अब मैं गाना गाती हूँ तो अब मेरी उस लेवल पे आवाज जाती नहीं है जैसे ये वाले अकूस्टिक सिंगर्स आते पहले जाती थी, जोल एंड मांड एंड ऑल दैट, वो वैसे आ ही नहीं पाती मेरी आवाज। इंस्टाग्राम पे कवर्स डालने शुरू किए, व्यूज ही नहीं आए उस पे, गिव अप कर दिया। यार ये तो है, मतलब डूइंग समथिंग जब तक वैलिडेशन नहीं मिल रही अगर वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट ठीक है, आई फील तब तक करो जब तक मजे आ रहे हैं। पढ़ाई करी, सीडी नहीं आई, गिव अप कर दिया। आपको आ गई? अब तो आ गई। कितनी चल रही है? 7.1 सीडी चल रही है मेरी। ठीक है, मेरे से हैं 7.5 4 है। दिख रहा है, शक्ल पे 5.4 दिख गया था मुझे। अच्छा 5 दिख गया था, वाओ। हाँ, ये कौन सा सिक्स सेंस है कि मतलब लड़कियां शक्लें पढ़ लेती हैं? ये कौन सा सिक्स सेंस है दैट वुमेन हैव एंड मेन डोंट? यूजुअली मेन डोंट हैव, मेन आर वेरी टेरिबल एट रीडिंग पीपल। एक बात बताओ, व्हाई डू men don't realize what they're doing in the moment and they regret it later, and why do women realize कि what's happening but समझ रहे हैं? हाँ, कि मतलब बात के लिए नहीं छोड़ते वो, अभी प्रोसेस करो। बट आई डोंट थिंक कि जनरलाइजेशन जेंडर वाइज करना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हु processes things, does not process things in the moment, and she, okay, invalid question, please cut it, please edit it out or whatever. Maybe it's fair, but in general men are slightly more complicated in that sense, and so are women, but emotionally women, लड़कियों का EQ ज्यादा होता है। That's how they're made biologically. Yeah, वो biological factor आ रहा है। I'm actually, मेरा माइनर जो है उस पे मैं किसी मेंटल हेल्थ इशू पे ही बात कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट क्योंकि माइनर की कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल्स, बायोटेक से इंग्लिश भी नहीं हो रही है अब। कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बट उस पर्टिकुलर डिसीज में मेन को ज्यादा रिस्क है because they suppress their emotions, so they're more susceptible to mental health disorders. It was, I don't know, मैंने ये भी कुछ podcast पे देखा था कि after a marriage or a separation, the lifespan of men decreases, but women increases. Yeah. Wow. Too much philosophical. भाई। क्या plan है life में अब? देखो, मुझे प्लेसमेंट चाहिए और मैं बायोटेक्स हूँ, तो तुम देख लो। थॉटकास्ट में आई हूँ इसीलिए अपना सोल्यूशन पूछने की, बाबा बता दो, नहीं हो पा रहा मुझसे, मेरे को नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है। अभी मैं सोचती हूँ कि कोई कोर्स कर लूँ, कंपनीज आएंगी तो थोड़ा कुछ बहुत तो बकवास इंटरव्यू में भी कर लूंगी कि आप लेके देखो मुझे, आपका काम कम हो जाएगा, आप करके बेस्ट एम्प्लॉय ले आऊंगी, बेस्ट एम्प्लॉय कॉफी ले, गाने सुनाऊंगी आपको। देखो एक्ट्रेस भी मिल रही है आपको। अबे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। How did people around react to it at that moment जब मूवी आई? जिन लोगों से सालों से बात नहीं हुई थी, they were suddenly very proud of my achievement। था ऐसे टेक्स्ट आए कि ब्रो आई ऑलवेज न्यू यू हैड इट इन योरसेल्फ। मैं कहा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मेरे को कोई घंटा मुझे भरोसा नहीं था। तो मेरी मूवी आई तो मैसेज आया, और मूवी का जैसे ही वो कम हो गया ना, उसके बाद उन लोगों से भी बात होनी बंद हो गई। तो वो लोग बहुत टेम्पररी उसके लिए आए थे, बट फिर ऐसे लोगों से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। बट मुझे वहां से थोड़ा वैलिडेशन का चस्का लग गया था, चाहिए यार, ये बढ़िया चीज होती है। वैलिडेशन नहीं मिलती तो क्या, कैसे डील करती है? Sit with it. Sit with your grief and then accept कि नहीं मिल रही वैलिडेशन अब तो।